Hello students, how are you all? So welcome back to your Meeti Ma'am's Nuclear and Chemistry classes. First of all, before starting anything, I would like to thank you all for giving such a pleasing and appreciating response to your ma'am. I'm highly grateful to you all and hope to have the same response in coming videos also. So last turn पे हमने फिजिकल केमिस्ट्री का एक वेपर प्रेशर का वीडियो बनाया था. आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टच देते हुए केमिकल बॉन्डिंग के एक टॉपिक का वीडियो आपको बना के एक एक्सपोजर दे रही हूँ, हाउ टू टीच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है. कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड. तो आज मैं कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर फोकस कर रही हूँ. सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में आई एम टुडे फोकसिंग, एज आई टोल्ड यू, ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड ओनली. द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो आज मेरा फोकस कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर है. तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी थ्योरीज प्रपोज की गई, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे. लेकिन आज मैं फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करूंगी, वैलेंस बॉन्ड theory. So the theories of chemical bonding. First theory is VBT theory. VBT theory. Second theory is valence shell electron pair repulsion theory, which we call VSE PR theory. Vesper theory. Third is the hybridization, and fourth we will discuss about molecular orbital theory one by one. But today my focus is on one theory, that is the valence bond theory. So valence bond theory, it was given by Hitler and London, and later on इस theory में कुछ modifications किए गए. So modifications were done by developed by Pauling and Slater. So it was proposed by Hitler and London, and later on it's what developed by Pauling and Slater. So what the VBT theory says regarding the formation of covalent bond? According to VBT theory, covalent bond is formed by half-filled atomic orbitals. Half-filled होने चाहिए. Half-filled, all of you know, they should have only one electron. Half-filled atomic orbitals. Half-filled atomic orbitals भी वैलेंस शेल के होने चाहिए, यानी कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी हाफ-फिल्ड, हैविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन. अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का होना चाहिए. तो नंबर हैविंग अपोजिट स्पिन undergoes partial interpenetration. This partial interpenetration term is introduced by NCERT. बच्चे आप इसको पढ़ेंगे और इस partial interpenetration के लिए आपको हर बुक्स में वर्ड मिलेगा overlapping. What word you are getting? Overlapping. A covalent bond is formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals having electron of opposite spin. But NCERT is using the word partial interpenetration. So keep in mind, this is the term introduced by NCERT for the overlapping. So covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals having electrons of opposite spin. So let's see. Here we will see, we will take one atom. This is having electron of clockwise spin. This is another atom which is having the electron of anti-clockwise spin. When they will undergo overlapping, they will result in the formation of covalent bond, and
the energy is released. तो कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे कैसे बना है? by overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbitals. तो यहां पर हम कहेंगे कि कौन सा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे? ऑर्बिटल ओवरलैप. कि ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन से बॉन्ड बनेंगे, दैट वी विल डिस्कस. एंड आवर सेकेंड फोकस इज रिगार्डिंग द एनर्जी. कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है. व्हाई दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस वी विल स्टडी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसेप्ट. यानी कि वीबीटी थ्योरी को हम दो कंसेप्ट में पढ़ सकते हैं, दो टर्म्स में पढ़ सकते हैं. फर्स्ट इज द ऑर्बिटल ओवरलैप एंड सेकेंड इज द एनर्जी कंसिडरेशन. तो बच्चे यहां पर आपने देखा कि दो एटम की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है और दिस डिस्टेंस between the nuclei of two covalently bonded atom at the time of their closest approach, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे बच्चे बॉन्ड लेंथ. This is called as bond length, distance between the nuclei of two covalently bonded atom at the time of their closest approach. And बच्चे जब overlapping हुई तो energy release हुई. यहाँ जो energy release होगी, this energy we will called as the bond energy. Bond energy is defined as the energy released when one mole of covalent bond is formed in a molecule. So two terms we have discussed, bond length and bond energy. So covalent bond is formed by the partial interpenetration of half-filled atomic orbitals of valence shell of an atom having electrons of opposite spin. As a result, maximum electron cloud is situated between two nuclei, and this distance we will call it as bond length, and energy released is called as the bond energy. So VBT theory we will study in terms of two consideration, orbital overlap and energy consideration. So today we will discuss about the एनर्जी कंसेप्ट फर्स्ट. एनर्जी कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वीबीटी थ्योरी में. तो बच्चे वीबीटी थ्योरी में एनर्जी कंसेप्ट मींस हमने एक ये एटम लिया, दिस इज अनदर एटम, दो इंडिविजुअल एटम्स हैं. अगर हम इस एटम में देखें तो बच्चे यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हियर दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हियर ऑल्सो वी हैव वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये प्रीवियस फोर्सेस है. प्रीवियस फोर्सेस हैं जब इंडिविजुअल एटम्स हैं, जब उन्होंने एक दूसरे को अप्रोच नहीं किया है. नाउ बच्चे व्हाट हैपेंस व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर? जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो बच्चे जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे दैट मींस दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, पास पास आएंगे. जब एटम पास पास आएंगे देन टू टाइप्स ऑफ फोर्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगी. और बच्चे कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? दोज फोर्सेस विल बी द फोर्सेस ऑफ attraction and forces of repulsion. Two types of forces come into play. First is the force of attraction and second will be the force of repulsion. So when two atoms are approaching each other, two types of forces are coming into play, forces of attraction and forces of repulsion. Now question arises कि what is the cause of forces of attraction and what is the cause of force of repulsion when these two atoms are approaching each other? So look here बच्चे, ये तो इंडिविजुअल एटम्स थे. आपने देखा पहले इंडिविजुअल एटम्स थे जिनमें कि एक की न्यूक्लियस उसी के इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रही थी. लेकिन जब ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. यानी कि इफ आई टॉक अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी विल कॉल एज न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन. ठीक है, क्या कहेंगे इसको बच्चे? न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन. इसी तरह से इसकी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी
तो यहां पर तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। लेकिन बच्चे साइमल्टेनियसली एक और फोर्स आएगी एंड दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां से आया? तो जब एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगी, यानी कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी दैट इज न्यूक्लियर रिपल्शन। ये रिपल्शन हो गया। एंड बच्चे साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अनदर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बच्चे यू कैन सी मैंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को अलग अलग कलर से शो किया हुआ है। तो वी कैन से कि व्हेन एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर coming into existence, forces of attraction and forces of repulsion. Then a molecule is formed. We will say कब एक molecule बनेगा? A molecule is formed. What is the condition? Molecule formation की condition है बच्चे, molecule is formed when the forces of attraction are greater than forces of repulsion. The condition for the formation of molecule is, what is the condition for the formation of molecule? Forces of attraction should be greater than the forces of repulsion. तो बच्चे जब भी हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल बनेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी स्पीशीज स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज कर रही है, तो एक एटम भी अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, दूसरा एटम भी अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की एनर्जी से कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हुई है तो वो कहाँ हुई, वो कहाँ गई? तो दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। सो वी विल से व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चे देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है और बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है। तो मॉलिक्यूल कब बनेगा बच्चे? द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस व्हेन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन are greater than the forces of repulsion. Let's explain this phenomena with reference to the formation of hydrogen molecule. So we will take formation of hydrogen molecule. बच्चे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमने एक H atom लिया. It has the configuration 1s1. Another H atom, it has the configuration 1s1. When they combine, they result in the formation of H2. One covalent bond is formed and इस केस में 436 kilojoules approximately of per mole of energy is released and this energy we will call it as bond energy. मैंने पहले ही बोला है ये एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? बॉन्ड एनर्जी। और ये डिस्टेंस हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। यानी कि दो हाइड्रोजन एटम दोनों ही हाफ फिल्ड थे बच्चे। देखो इसमें भी एक s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों हाफ फिल्ड थे, दोनों की इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन की है। व्हेन दे विल अंडरगो ओवरलैपिंग दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चे देखो कोवेलेंट बॉन्ड में हम एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, तो एनर्जी हम कैसे डिस्कस करेंगे? ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, these are the two hydrogen atoms. जब ये हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेंगे तो बच्चे वही कंसेप्ट है जो मैंने पहले बताया था कि when these two atoms will approach then they will have the force of attraction. तो बच्चे बताएंगे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जरा काउंट करो। If I talk about the force of attraction, one force of attraction, this is one force of attraction and second is this force of attraction. तो हाउ मेनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे? टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे कौन से हैं? न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। और बच्चे अब हाइड्रोजन में भी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी, जैसे मैंने पहले बताया इसमें एक रिपल्शन होगा, तो कौन सा रिपल्शन हो जाएगा बच्चे? फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी one force of repulsion will be nuclear repulsion. I have shown with the green color. And second repulsion, as I told you earlier also, that will be the electron repulsion.
तो बच्चे इस केस में आपने देखा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी 2 हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी 2 हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है बच्चे? 2। और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कितनी है? 2। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया बच्चे, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है कंपैरेटिवली कम होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैग्नीट्यूड इज कंपैरेटिवली लेस, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट करेंगी एंड H2 मॉलिक्यूल इज formed. So during formation of H2 molecule, forces of attraction are more than the forces of repulsion. चाहे मैग्नीट्यूड दोनों का, नंबर दोनों का 2-2 है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है. दैट इज व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule is taking place. Are you getting it? How the H2 molecule is formed? Is it okay बच्चे? So next we will do the graphical representation of formation of H2 molecule. हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे कि H2 molecule formation कैसे होगी. So I am explaining the graph of formation of H2 molecule. Look here बच्चे. This is the graph which is representing the formation of H2 molecule. Y-axis पे we have taken potential energy and on x-axis we have taken internuclear distance. दो atoms की बीच की nucleus का distance. और बच्चे this is well known fact कि जब भी potential energy कम होती है then only the stability is attained. Then only the stability is attained. Okay? तो बच्चे हमने क्या लिया कि दो हाइड्रोजन एटम्स ले रहे हैं. ये दो हाइड्रोजन एटम्स कहाँ हैं? एट इंफिनिटी. और इंफिनिटी पे दो हाइड्रोजन एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, दो हाइड्रोजन एटम्स की बच्चे पोटेंशियल एनर्जी क्या है एट इंफिनिटी? पोटेंशियल एनर्जी इज 0. That I am indicating here. Potential energy 0 होने का मतलब है, मतलब इनमें कोई force of attraction नहीं है. They are independent of each other. जब दोनों में एक एटम का इन्फ्लुएंस दूसरे एटम पे है ही नहीं है, तो हम कहेंगे उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी. अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम्स ने पास आना शुरू किया. पास आए, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. यहां पर क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. ये पास आए, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, और पास आए, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और पास आए, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई. और इस एक्सटेंट पे ये वाली कंडीशन है, दिस कंडीशन, कि दो हाइड्रोजन एटम जितने पास आ सकते थे आ गए, इससे ज्यादा ये पास नहीं आ सकते. तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. बच्चे वर्ड हम पूरा सेंटेंस यूज करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे दो एटम जितने पास आ सकते थे आ जाए, वो ये डिस्टेंस है. और बच्चे इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम. पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम. और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, व्हाट विल यू कमेंट अबाउट द स्टेबिलिटी? मैक्सिमम. यानी कि यही वो कंडीशन है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. इस पॉइंट पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इस पॉइंट पे हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन. बच्चे दिस कंडीशन इज द कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. मैंने आपको आगे बताया था कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की कंडीशन होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, बट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इस स्टेट में होता है. इसको आप चाहें तो कह सकते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. Why state of equilibrium? Because at this stage force of attraction are equal to force of repulsion. बच्चे अगर इस डिस्टेंस से ज्यादा दो हाइड्रोजन एटम पास आए, then we will say that potential energy is drastically going to increase. क्यों पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि जब दो हाइड्रोजन एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास आ जाएंगे तो न्यूक्लियर रिपल्शन डोमिनेट करेगा. Why potential energy increases? Potential energy increases due to nuclear repulsion. So graphically I have explained the formation of H2 molecule कि H2 ये ग्राफ बच्चे NCERT में दे रखा है. And remember
हर ग्राफ की तरह इसे आपको लेफ्ट से राइट स्टडी नहीं करना है. द ग्राफ शुड बी स्टडीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पर मिनिमम आ गई, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन हो गई, और उसके बाद न्यूक्लियर रिपल्शन डोमिनेट किया और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, मतलब इसके बाद मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो बच्चे अब हमने क्या कहा कि इस डिस्टेंस को हमने ले लिया, बॉन्ड लेंथ वाला डिस्टेंस. दिस इज आर नॉट, यानी कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैंने क्या ले लिया, आर नॉट. और मैंने बोला है बॉन्ड लेंथ इज द, इस पॉइंट को इंडिकेट कर, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम एट द टाइम ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच. तो बच्चे अब हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे. ये पूरा का पूरा डिस्टेंस देखो बच्चे क्या था, आर था, और ये आर नॉट है. इफ आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर नॉट से ज्यादा है, then forces of attraction are greater than forces of repulsion. And when R is equal to R naught, मतलब इस पे force of attraction are equal to force of repulsion, and this is the condition for bond formation. ये bond formation की condition हो जाएगी. और बच्चे अगर R की वैल्यू लेस देन R नॉट हुई, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा पास आ गए, इस केस में क्या होगा बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो थ्री केसेस वी हैव एक्सप्लेन्ड graphically for the formation of H2 molecule. I hope is it clear about formation of H2. तो बच्चे अब इसी को अगर हम देखें नेक्स्ट केस में कि He मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता. हमने देखा है He प्लस He, हीलियम एटम, another helium atom, it should result in the formation of He2, लेकिन He2 molecule exist नहीं करता. Now you will ask me कि मैम जरा explain कीजिए कि He2 molecule क्यों नहीं explain कर रहा है. So let me explain you formation of He2 molecule. बच्चे ये दो इंडिविजुअल हीलियम एटम्स हैं, दोनों इंडिविजुअल हीलियम एटम है, और इन इंडिविजुअल हीलियम एटम में देखो ये इसकी न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, तो इंडिविजुअल एटम में दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये इंडिविजुअल एटम है, दोनों के दोनों क्या है बच्चे, इंडिविजुअल एटम है. और इसमें भी आप देखोगे बच्चे एक अट्रैक्शन यहां पे हुआ, एक अट्रैक्शन यहां पे हुआ, यानी कि दोनों एटम में प्रीवियसली दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब यही हीलियम एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मतलब when they will come close to each other, when they will approach each other, अच्छा tell me what will happen, force of attraction. तो काउंट करते हैं कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए. इस न्यूक्लियस ने इसको इलेक्ट्रॉन को खींचा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस ने इसको इलेक्ट्रॉन किया, थर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसने इसको अट्रैक्ट किया, फोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि अगर मैं कहूं कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए बच्चे, फोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए, और एक एटम की न्यूक्लियस है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए फोर. अब लेट्स काउंट द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आल्सो, रिपल्सिव फोर्सेस काउंट करते हैं. तो देखो बच्चे एक न्यूक्लियर रिपल्शन, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. सेकेंड, दिस इज थर्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. तो बच्चे देखो ये भी तो रिपेल करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपेल किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपेल किया. तो बच्चे अगर हम देखें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन टोटल कितने हो गए, 5. कैसे 5? वन फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सा है, एक हीलियम की न्यूक्लियस दूसरे हीलियम को रिपेल कर रही है. और इसके अलावा बच्चे 4 फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एक की फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन और सेकंड का भी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारा, ये तो न्यूक्लियर रिपल्शन था, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. तो हीलियम के केस में अगर हम देखेंगे हाउ मेनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 4, फोर्स ऑफ रिपल्शन बच्चे टोटल कितनी हो गई, 5. तो हीलियम के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लेस देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. अट्रैक्टिव फोर्सेस 4 है, रिपल्सिव फोर्सेस 5 है. दैट इज व्हाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. मैंने पहले ही बताया था मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस तभी होगी व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. सो लेट्स एक्सप्लेन ग्राफिकली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हीलियम मॉलिक्यूल.
हीलियम मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को हम देखते हैं। लुक हियर बच्चे, यहां पर हमने ग्राफ लिया। इस केस में यहाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये दो हीलियम एटम्स हैं और कहाँ है, एट इंफिनिटी, यानी कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनकी 0 है। जब ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पास आएंगे, तो बच्चे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, अट्रैक्टिव से रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, यानी कि जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो बच्चे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, और जैसे जैसे पास आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये दोनों एटम कभी भी कंबाइन करके He2 मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। So in this way I have explained कि why the energy is released during formation of a molecule। लेकिन बच्चे इस कंसेप्ट को हाइड्रोजन हीलियम तक तो ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे मैम नाइट्रोजन में निकालो, मैम ऑक्सीजन में निकालो, और अब मेरे से किसी ने पूछा मैम आयोडीन में निकालो 53 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फिजिबल नहीं है बच्चे। हर मॉलिक्यूल के लिए हम ये कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, तो बस ये एक कंसेप्ट हो गया कि व्हाई द एनर्जी इज रिलीज्ड, कौन से मॉलिक्यूल में किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, वो हम आगे वाली थ्योरी से पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीबीटी थ्योरी, दैट इज द ऑर्बिटल कंसेप्ट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।